Now we will study about the classification of bryophytes. R.H. Whittaker ने plant kingdom का classification दिया था. He divided the plant kingdom into 5 phylums. Now there was a scientist called Smith. उनका नाम Smith था. Smith ने phylum Bryophyta को further 3 classes में classify किया. So we'll study about the classification of bryophytes. Smith was a scientist. He in 1995 classified bryophytes into 3 classes. Class number 1 is Bryopsida. Class number 2 is Hepaticopsida. And class number 3 is Anthocerotopsida. इन 3 क्लासेस के दूसरे नाम हैं. Bryopsida is also called as musky. Hepaticopsida को Hepatica भी कहा जाता है. And Anthocerotopsida is also known as Anthocerote. Bryopsida के अंदर बेसिकली जो प्लांट्स आते हैं दे आर कॉल्ड एज मॉसेस. Hepaticopsida के अंदर liverworts and Anthocerotopsida includes all of the hornworts. Hepato से the name is derived. Hepaticopsida, hepato is for liver, इसीलिए इनका common name liverworts रखा गया है. So Smith in 1995 classified bryophytes into 3 phylums: Bryopsida, Hepaticopsida and Anthocerotopsida. Now one by one we will study the general characteristics of these classes in brief. Class number 1 is Bryopsida. Which includes all the mosses. Predominant stage of life is gametophytic. Which itself is divided into 2 stages. Stage number 1 is the protonema stage and stage number 2 is the leafy stage. Protonema develops directly from germination of spore. It is a creeping green branched and frequently
filamentous stage. Leafy stage develops from protonema as lateral bud it consists of upright, slender axis with spirally arranged leaves. इनके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स आर ऑलवेज मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड. In sexual reproduction, Antheridia and Archegonia are produced at the apex of leafy shoots. After fertilization, zygote develops to sporophyte, which consists of foot, seta and capsule. Capsule contains haploid spores which are formed after the meiosis, and spores are shed in installments. इसका एग्जाम्पल इज फ्यूनेरिया. So these are the general characteristics of all the plants which lie in class Bryopsida. Like example is Funaria. इनकी जो predominant stage होती है gametophytic stage, Bryophytes की जो life cycle होती है, it is divided into two stages, the gametophytic stage and the sporophytic stage. Bryopsida की जो gametophytic stage होती है, it is further divided into two stages, which is the protonema stage and the leafy stage. तो जो protonema stage होती है वो डायरेक्टली जैसे ही स्पोर से जर्मिनेशन हुआ प्लांट का, तो जो गैमेटोफाइट की पहली स्टेज आती है, इट इज द प्रोटोनीमा स्टेज. इट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ स्पोर. जैसे ही स्पोर से जर्मिनेशन होता है वैसे ही प्रोटोनीमा स्टेज का फॉर्मेशन होता है. प्रोटोनीमा स्टेज इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज. सबसे पहले वही आती है, ब्रांच होती है, इट इज फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस, मतलब जो उसकी जो पार्ट्स होते हैं दे आर इन फिलामेंट्स. प्रोटोनीमा स्टेज के बाद जो लीफी स्टेज आती है, लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम प्रोटोनीमा एज लेटरल बड. जैसे ही प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन हुआ उसमें लेटरल बड्स के थ्रू लीफी स्टेज आनी स्टार्ट हो जाती है. जो प्रोटोनीमा होता है वो अपने एक्सिस पे इट गिव्स राइज टू बड्स. फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्सिस ऑफ प्रोटोनीमा, तो इट गिव राइज टू बड्स. तो बड्स से लीफ का फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज द लीफी स्टेज. राइजोइड्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड. राइजोइड्स आर ऑलवेज ब्रांच्ड एंड मल्टीसेलुलर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथेरिडिया और आर्किगोनियम आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स.
ये जो लीफी स्टेज की जो शूट्स हैं, इनके एपेक्स पे एंथेरिडिया और आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वहाँ पे आर्किगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट आर्किगोनियम के अंदर ही रहता है। देन इट फॉर्म्स स्पोरोफाइट with foot, seta and capsule. This is sporophyte, this is gametophyte, and this diagram is of Funaria, a moss. So in sexual reproduction, Antheridian archegonia are produced at the leafy shoots. उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये इन सब चीजों का फॉर्मेशन आर्किगोनियम के अंदर ही होता है। देन उसके बाद धीरे धीरे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। वो इलोंगेट होता है, पहले फुट का फॉर्मेशन होगा, फिर सीता का फॉर्मेशन होगा, फिर फाइनली कैप्सूल बन जाएगा। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर हैप्लॉइड, मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये स्पोर्स शेड इन इंस्टॉलमेंट्स। लाइक क्या होता है कि जैसे ही कैप्सूल का डिहाइसेंस होता है तो सारे स्पोर्स एक ही बार में नहीं शेड करके जर्मिनेट कर जाते हैं, वो छोटे छोटे इंटरवल्स पे जर्मिनेट करते हैं। अब वो इंटरवल्स कुड बी ऑफ फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, और इट कैन इवन अ डे और 2। सो स्पोर्स डायरेक्टली शेड करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, देन दे जर्मिनेट and they again form protonema stage. So this is how life cycle of mosses goes on. इसका example है Funaria. Now the second class which we are going to study is the hepatic opsida, which are commonly called as liverworts. Hepato is for liver, इसीलिए इनका कॉमन नाम रखा गया है liverworts. They grow in moist and shady places. The plant body is thalloid. Thallus is dorsiventral and have tiny leaf-like appendages in 2 rows. On stem like structures. Rhizoids, इनके जो rhizoids होते हैं they are unicellular and unbranched. During sexual reproduction, male and female organs are produced on same or different villi. Sporophyte
is differentiated into foot, seta and capsule. Seta is photosynthetic. Spores are haploid and they directly germinate to form new plants. All spores are shed at same time. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरीके से होती है. Number 1 is by fragmentation. And number 2 is by formation of gamete. गेमेट जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनका स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. इसके अंदर गेमे प्रेजेंट होते हैं. क्लब शेप स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है. दिस इज अ गेमा. दिस इज गेमा कप. सो लिवरवॉर्ट्स के अंदर क्या होता है, ये यूजुअली मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं. इनकी जो प्लांट बॉडी होती है इट इज सिंपल थैलॉइड, जैसा कि मैंने आपको बताया था इन दृश्या. द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड और इनके जो राइजोइड्स होते हैं दे आर अनब्रांच्ड. राइजोइड्स आर अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर. और इनके ऊपर गेमा कप्स भी प्रेजेंट होते हैं. So thallus is dorsiventral or it have tiny leaf-like appendages in 2 rows on stem-like structures. जैसा कि आप दृश्य में देख सकते हैं, this is a stem-like structure, okay? And इस stem-like structure के ऊपर leaves present है in 2 rows. One is this leaf-like structure, and on the stem-like structure, this is stem-like. And this is leaf like. Okay, राइजोइड्स इनके यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होते हैं. जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सो मेल और फीमेल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम थैलाई और द डिफरेंट थैलाई. यानी कि ये मोनोसिस भी हो सकते हैं और डायोसिस भी हो सकते हैं. मेल फीमेल अलग अलग भी हो सकते हैं विच इज कॉल्ड एज मोनोसिस कंडीशन. एंड डायोसिस भी हो सकते हैं कि दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही थैलस पे प्रेजेंट है, विच द कंडीशन विच वी कॉल एज डायोसिस. स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीता एंड कैप्सूल. अच्छा, जब ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के बाद गैमीट्स रिलीज होते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है, देन एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है. तो स्पोरोफाइट इनका फुली डिफरेंशिएटेड होता है इनटू फुट, सीता एंड कैप्सूल. और इनका जो सीता होता है दैट इज द स्पोरोफाइट का जो पार्ट होता है इट इज फोटोसिंथेटिक. दैट मीन्स कि ये फिजिकली तो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है लिवरवॉर्ट्स का स्पोरोफाइट, बट न्यूट्रिशनली इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट. इनके जो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स आर हैप्लॉइड एंड दे डायरेक्टली जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल आपने पिछली क्लास जो थी ब्रायोप्सिडा मॉसेस, उनके अंदर देखा था
कि स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो वो पहले प्रोटोनीमा स्टेज फॉर्म करता है, देन लीफी स्टेज फॉर्म करता है। लीफी स्टेज पे आकर एंथेरिडिया और आर्किगोनियम से मेल और फीमेल गैमेट्स रिलीज होते हैं। बट यहाँ क्या होता है कि स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जैसे ही उनका जर्मिनेशन होता है वैसे ही वो न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बना लेते हैं विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनी इनिशियल स्टेज। आपने ब्रायोप्सिडा में देखा था कि जो एंथेरिडियम का डिहाइसेंस होता है उसके बाद स्पोर्स का जो शेडिंग होती है वो छोटे छोटे इंटरवल्स पे होती है, लेकिन इसके अंदर डिहाइसेंस होते के साथ ही सारे के सारे स्पोर्स एक साथ ही शेड हो जाते हैं एंड अलग अलग जगह पे जाके जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये बात थी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ देखते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप से, फ्रेगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमा। फ्रेगमेंटेशन इज कि इनकी प्लांट की बॉडी का एक कोई पार्ट टूट जाता है, इट गोज इनटू द सॉइल, जर्मिनेट्स देयर एंड वो नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। टूटे हुए छोटे से पार्ट से पूरा प्लांट फॉर्म हो जाता है। लेकिन इन फॉर्मेशन ऑफ गैमा, गैमा क्या होता है? गैमे आर स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, गैमे आर multicellular specialized structure which develop in small receptacles. This is a receptacle which is called as gamma, gamma cup, जिनको हम कहते हैं प्लांट के गैमेटोफाइटिक थैलस पे ब्रायोफाइट। बेसिकली इन लिवरवॉर्ट्स में क्या होता है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमा कप का फॉर्मेशन हो जाता है। गैमा कप के अंदर छोटे छोटे गैमे प्रेजेंट होते हैं। गैमे क्या करते हैं? डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। सो ये दो तरीके हैं लिवरवॉर्ट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के। क्लास नंबर 3 इज Anthoceratopsida, which is also called as hornworts. It has elongated horn-like structures which are called as sporophytes. They have thalloid plant body with internal differentiation. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द थर्ड क्लास ऑफ द ब्रायोफाइट्स, दैट इज एंथोसेरोटॉप्सिडा। इनके प्लांट्स को हम कॉमनली बोलते हैं हॉर्नवुड्स। हॉर्नवुड्स इनको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज देयर स्पोरोफाइट का इनका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज इन द शेप ऑफ हॉर्न्स।
it has elongated horn-like structures which are called sporophytes. Plant body is thalloid with internal differentiation. Mucilaginous cavities are present on ventral surface which contain blue-green algae like nostoc in them. इनके जो rhizoids होते हैं, rhizoids are smooth walled and simple. Sex organs are sunken in thallus. Sporophyte is well developed with foot, seta and capsule. And the most important characteristics of this is pseudo-elaters are present which by twisting helps in dispersal of seeds. So these are the general characteristics of class Anthoceratopsida. इनको कॉमनली हम हॉर्नवोर्ड्स बोलते हैं एंड इनको हॉर्नवोर्ड्स इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इनका जो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर होता है इट इज ऑफ हॉर्न शेप. जो प्लांट बॉडी होती है इट इज सिंपल थैलस विद इंटरनल डिफरेंशिएशन जिसके अंदर डिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर स्टोरेज एंड फॉर राइजोइड्स फॉर एब्जॉर्प्शन. म्यूसिलेजिनस इनके अंदर इनका जो वेंट्रल सरफेस होता है इनकी थैलस पे नीचे वाला जो सरफेस होता है वहां पे म्यूसिलेजिनस कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गे लाइक नॉस्टॉक आर प्रेजेंट. इनके जो राइजोइड्स होते हैं दे आर स्मूथ वॉल एंड सिंपल. सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन थैलस एंड दे आर संकन इन थैलस. मतलब आपको वो थैलस पे क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, दे आर संकन इन थैलस. स्पोरोफाइट इज वेल डेवलप्ड विद फुट, सीता एंड कैप्सूल. जो इनकी स्पोरोफाइट होती है इट इज वेल डेवलप्ड and this is the special feature of the hornworts कि इनके अंदर pseudo-elaters present होते हैं. elaters help करते हैं twist करके, they are help in the dehiscence जिससे कि spores का dispersal आसानी से हो जाता है. So this was all about the classification of bryophytes.